محترم سامعین کرام، آج جس عنوان کو لے کر میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ ہے شیطان کے فتنے سے بچنے کے اسلامی طریقے۔ آج ہم روشنی ڈالیں گے انشاءاللہ ان چیزوں پر، ان طریقوں پر اور ان اعمال پر جن کو کرنے سے ہم شیطان کے فتنے سے بچ سکتے ہیں، شیطان کے نقصان سے بچ سکتے ہیں، جن پر عمل کرنے سے شیطان ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ہمیں یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ شیطان یہ انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، اور یہ شیطان وہی شیطان ہے جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اللہ رب العالمین نے جب فرشتوں سے اور فرشتوں کی مجلس میں شیطان بھی تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان سب سے کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، تو تمام کے تمام فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدے سے انکار کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روک دیا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا؟ تو اس ابلیس نے تکبر کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے۔ ایک تکبر دل میں پیدا ہوا شیطان کے کہ میں آگ اور وہ مٹی، میں آدم کو سجدہ کروں گا، میں ایک مٹی کو سجدہ کروں گا۔ تو اسی انا نے، اسی تکبر نے شیطان کو اللہ کے دربار سے نکلنے پر مجبور کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کی جب نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اپنے دربار سے نکال دیا، اور تمام جہان کی، تمام مخلوقات کی قیامت تک اس پر لعنت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا ٹھکانہ جہنم بنایا ہے۔ تو شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا سورہ فاطر کے اندر، لوگوں کو ارشاد مخاطب کرتے ہوئے، مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے، اے مسلمانوں، ان الشیطان لکم عدو، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، تو تم بھی اسے اپنا دشمن ہی تصور کرو، تم اسے اپنا دشمن ہی سمجھو۔ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، وہ اپنے پیروکاروں کو اس لیے بلاتا ہے، وہ اپنی طرف لوگوں کو اس لیے بلاتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو جہنمی بنا دے، جہنم میں لے جائے، وہ ایسے کام کرائے، ایسے فتنے میں مبتلا کرائے جس کی وجہ سے لوگ جہنمی بن جائیں۔ شیطان کو تو یہ معلوم ہے کہ میں جہنم میں جاؤں گا ہی، میرا ٹھکانہ تو جہنم ہے ہی، کیوں نہ میں اپنے ساتھ میں چلنے والوں کو، اپنے پیروکاروں کو بھی جہنم میں لے جاؤں، ایسے لوگوں کو اپنی طرف مائل کروں، ایسے لوگوں کو اپنی طرف بلاؤں جو میری بات مانے، اور انہیں بھی اپنے ساتھ میں جہنم میں لے جاؤں۔ یہ شیطان کی کوشش ہے کہ میں تو جہنمی ہوں ہی، کیوں نہ اللہ کے بندوں کو بھی جہنمی بنا دوں۔ اور اس نے وعدہ کیا ہے کہ اے اللہ تو مجھے قیامت تک مہلت دے دے، میں تیرے بندوں کو بہکاتا رہوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا جو میرے نیک بندے ہیں وہ تیرے کے بہکامی میں نہیں آ سکتے۔ اللہ رب العالمین نے مومنوں کو دوسری جگہ نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو، اے مومنو، تم شیطان کے راستے پر نہ چلو۔ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالْمُنكَرِ
फ़इन्नहु यामुरु बिलफ़हशाई वल मुनकर, क्योंकि जो शख्स शैतान के रास्ते पर चलता है, शैतान की पैरवी करता है, तो शैतान उसे बेहयाई और बुरे कामों का ही हुक्म देता है। उसका काम ही है कि वो लोगों को बुरे कामों में मुलव्विस करे, वो लोगों को बुराइयों में मुलव्विस करे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मोमिनो, तुम शैतान के रास्ते पर ना चलना, शैतान के रास्ते पर चलने से बचना। क्यों? क्योंकि इसी में कामयाबी है। अगर हम शैतान के रास्ते पर लग गए तो शैतान अपनी चाल में कामयाब हो जाएगा, वो अपनी कोशिश में कामयाब हो जाएगा, क्योंकि उसका मकसद ये है कि शैतान का मकसद ये है कि वो अल्लाह के रास्ते से लोगों को गुमराह करके अपने रास्ते पर ले जाए, बुराइयों में मुलव्विस करे, गुनाह के काम करवाए, यही शैतान की कोशिश है। तो आइए मैं आपके सामने कुछ ऐसे आमाल जिक्र करता हूँ, कुछ ऐसे तरीके बताता हूँ जिन पर अमल करने से हम शैतान के फितने से बच सकते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, व इम्मा यनज़गन्नका मिनश शैतानी नज़गुन फस्तईज़ु बिल्लाह। लोगों, जब तुम्हें शैतान की जानिब से कोई वसवसा आने लगे, कोई बुरे ख्यालात तुम्हारे जहन में आने लगे, फस्तईज़ु बिल्लाह, तो अल्लाह की पनाह मांग लिया करो, यानी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लिया करो। इन्नहु समीउन अलीम, बेशक अल्लाह सुनने वाला और सब कुछ जानने वाला है। तो मेरे प्यारे साथियों, जब भी हमें बुरे ख्यालात नजर आए, बुरे ख्यालात हमारे दिल में पैदा हो, शैतान हमारे दिल में वसवसा दे, तो हमें अल्लाह की पनाह मांगना चाहिए, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना चाहिए। ऐसा करने से अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम हिफाजत में आ जाते हैं और शैतान हमसे दूर हो जाता है। तो शैतान अगर वसवसा भी दिलाए तब भी हमें उससे बचना है। अभी बुराई में मुब्तला किया नहीं है, लेकिन दिल में ख्यालात पैदा कर रहा है कि ये बुराई कर ले, अरे गुनाह कर ले, और गुनाह को वो खूबसूरत करके पेश करता है, अच्छा बना के पेश करता है, उसमें लज्जत दिलाता है कि ऐसा कर लेगा तुझे बड़ी लज्जत मिलेगी, तू ये हराम काम कर लेगा बड़ा फ़ायदा हो जाएगा तेरा। लेकिन उस वसवसे में हमें आना नहीं है, हमें फ़ौरन अल्लाह की पनाह तलब करना है, अल्लाह की पनाह मांगना है। जब हम अल्लाह की पनाह में आ जाएंगे तो शैतान खुद ब खुद दूर हट जाएगा। इसी तरह पहली चीज़, आइए, जब हम घर से निकलें तो घर से निकलते वक्त दुआ पढ़ के निकलना चाहिए। जब हम घर से निकलते वक्त दुआ पढ़ लेते हैं तो शैतान हमसे दूर हो जाता है और हमें हर मुश्किल, हर परेशानी, हर मुसीबत से इस दुआ के ज़रिया हिफाजत मिलती है। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत करता है। आइए, कौन सी दुआ? इमाम कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से जब कोई अपने घर से निकले, घर से निकलते वक्त ये दुआ पढ़ ले, बिस्मिल्लाही, अल्लाह के नाम से, तवक्कलतु अलल्लाह, मैंने अल्लाह रब्बुल आलमीन पर भरोसा कर लिया है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, नेकी करने की ताकत रखना और गुनाहों से बाज आना ये अल्लाह की मदद के बगैर मुमकिन नहीं। इमाम कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई बंदा, मुसलमान बंदा इस दुआ को पढ़कर घर से निकलता है तो अल्लाह की तरफ से निदा आती है, वो कहता कुफैता, तेरी किफ़ायत की गई, हुदैता, तुझे सीधा रास्ता दिखा दिया गया, वो कहता, तुझे हर मुश्किल से बचा लिया गया, हर परेशानी से तेरी हिफाजत कर दी गई, वह तनहानु शैतान, और शैतान को उससे दूर कर दिया जाता है। और एक शैतान दूसरे शैतान से कहता है, तेरा इस आदमी पर, इस शख्स पर कैसे जोर चल सकता है, कैसे बस चल सकता है, जिसकी अल्लाह ने हिफाजत की हो, जिसकी किफ़ायत की गई हो, जिसे सीधा रास्ता दिखा दिया गया हो, अब तेरा बस नहीं चल सकता, क्योंकि इसकी हिफाजत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने ज़िम्मे ले ली। तो
बड़ी छोटी दुआ है। जब भी घर से निकलें, शैतान के फितने से बचने के लिए, तमाम मुश्किलात से बचने के लिए, परेशानी से बचने के लिए बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, बस इतनी दुआ पढ़ के निकलें। कोई बुराई में आप मुब्तला नहीं हो सकते, किसी परेशानी में मुब्तला नहीं हो सकते अगर मुकम्मल यकीन के साथ ये दुआ पढ़ते हैं इंशाअल्लाह। किसी रंज में, किसी गम में, किसी मुसीबत में, किसी बला में आप नहीं फंस सकते, बल्कि आपका रास्ता आसान हो जाएगा जहां भी आप जाने। क्यों? क्योंकि शैतान आपके रास्ते से हट गया। अब शैतान आपके पीछे नहीं है, इसलिए आप घर से निकलने के बाद वापस आ जाएंगे और इंशाअल्लाह आपको किसी तरह की कोई दिक्कत, कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसी तरह आइए दूसरी चीज़ जिसके ज़रिया से हम शैतान से बच सकते हैं, शैतान के फितने से बच सकते हैं, वो है कि फजर की नमाज के बाद 100 मरतबा ये दुआ पढ़ना। कौन सी दुआ? ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं। लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु, तमाम तारीफें और तमाम बादशाहत अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, और अल्लाह रब्बुल आलमीन हर एक चीज पर कादिर है, हर एक चीज पर कुदरत रखता है। इमाम कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स फजर की नमाज के बाद 100 मरतबा ये दुआ पढ़ लेता है तो उसके लिए 10 गुलाम आजाद करने का सवाब मिलता है। ये इस दुआ के पढ़ने की बरकत से उसे 100 नेकियां उसे दे दी जाती हैं, उसकी 100 बुराइयां मिटा दी जाती हैं और शाम होने तक वो शैतान से महफूज रहता है। कितना फ़ायदा कि 10 गुलाम आज़ाद करने का सवाब इस दुआ के पढ़ने से अल्लाह ताला अता करता है। 100 नेकियां हमारे नामे आमाल में लिख दी जाती हैं और 100 बुराइयां हमारी कम कर दी जाती हैं, और अल्लाह ताला हमें शैतान से बचा लेता है। शैतान फिर पूरे दिन कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। सिर्फ 100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, ये पढ़ना है। सिर्फ 100 मरतबा दिन भर में, कोई मुश्किल नहीं अगर हम चाहें। यह भी अल्लाह का जिक्र है और हमें तो अल्लाह का जिक्र करते रहना चाहिए। एक मोमिन का काम है कि वो अल्लाह का जिक्र करे। तो दूसरी चीज़ मालूम ये हुआ इससे कि जो बंदा इस दुआ को पढ़ लेता है शाम होने तक, वो शैतान से महफूज रहता है। आइए तीसरी चीज़ जिसके ज़रिया से हम शैतान के फितने से बच सकते हैं, शैतान के नुकसान से बच सकते हैं, वो है आयतल कुर्सी पढ़ के सोना। एक मरतबा का वाक़या है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु माले गनीमत जो मुसलमानों को दौरान जंग माल जो हासिल होता था उसकी हिफाजत रात में कर रहे थे। हजरत अबू हुरैरा लेटे हुए हैं, माल पड़ा हुआ है, उसकी हिफाजत में रखवाली कर रहे हैं। अचानक रात के वक्त इंसानी शक्ल में एक शैतान आता है। अबू हुरैरा ने पहचान नहीं सके उसे, क्योंकि इंसानी शक्ल में था, और उसे पकड़ लिया। उसने क्या किया? माल को भरना शुरू कर दिया। अबू हुरैरा ने उसे पकड़ लिया, लेकिन वो गड़गड़ाने लगा, मैं भूखा हूँ, तंगदस्त हूँ, छोड़ दीजिए, अब नहीं आऊँगा। अबू हुरैरा ने, रहम दिल आदमी थे, साहबे रसूल थे, उसे माफ़ फरमा कर छोड़ दिया, चल कोई बात नहीं, ले जाओ। दूसरे दिन फिर आया और फिर उसने यही काम किया कि माल ढेर में से उठाया और भरना शुरू कर दिया। अबू हुरैरा ने फिर उसे पकड़ लिया, फिर वो गड़गड़ाने लगा और अपनी परेशानी बयान करने लगा। हजरत अबू हुरैरा ने फिर छोड़ दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस वाक़े की खबर देने हैं दिन में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा अगली रात फिर आएगा वो। अब जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया तो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु को यकीन हो गया कि वो आएगा ज़रूर। अबू हुरैरा ताक में लगे हुए हैं कि वो किस टाइम आने वाला है, और इत्तेफाक से वो आ ही जाता है। फिर उसने माल भरना शुरू कर दिया।
अबू हुरैरा ने कहा आज तो तुझे छोड़ूंगा नहीं, 2 दिन हो गए, आज तीसरे दिन तुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लेके जाऊंगा। उसने कहा मुझे छोड़ दीजिए, मैं तुम्हें एक ऐसी दुआ बता देता हूँ, ऐसा कलिमा बता देता हूँ, ऐसे कलमात बता देता हूँ कि जब तुम उन्हें पढ़ लोगे तो रात भर अल्लाह की तरफ से तुम्हारी हिफाजत करेगा और सुबह होने तक कोई शैतान तुम्हारे करीब नहीं आ सकता। फरमाया शैतान ने अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से इज़ा अवैता इला फिराशिका, ऐ अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु जब तुम अपने बिस्तर पर आया करो फ़क़रा आयतल कुर्सी, तो आयतल कुर्सी की तिलावत कर लिया करो, आयतल कुर्सी पढ़ लिया करो, क्योंकि लन यज़ाल मिनल्लाहि हाफिज़ुन, ऐसा करने से रात भर अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से एक फरिश्ता तुम्हारी हिफाजत करेगा। वला यक़रबका शैतानुन हत्ता तुस्वा, और सुबह होने तक कोई शैतान तुम्हारे करीब भी नहीं आएगा। आयतल कुर्सी पढ़ने से अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी जान की भी हिफाजत करेगा, तुम्हारे माल की भी हिफाजत करेगा, और कोई शख्स, कोई शैतान या कोई भी चीज तुम्हारे करीब नहीं आएगी, किसी तरह का तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू हुरैरा सुबह होती है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते हैं, पूरा वाकया बयान करते हैं और शैतान का कि ये कलमात भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना देते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अबू हुरैरा, वो शैतान था जो तुम्हारे पास 3 दिन से आ रहा था और उसने जो कलमात तुम्हें बताए ये सच है, हालांकि वो झूठा है। ये कलमात सच हैं, उसने जो बताए हैं, ये आयतल कुर्सी ये सच बताई है। ऐसा ही है कि जो बंदा आयतल कुर्सी पढ़ के सो जाता है तो अल्लाह ताला उसकी हिफाजत करता है, उसके माल की भी हिफाजत करता है। तो हमें इस चीज़ से मालूम ये हुआ कि हम रात को सोते वक्त आयतल कुर्सी का एहतमाम करें, आयतल कुर्सी ज़रूर पढ़ के सोया करें, क्योंकि इससे हमारी खुद की हिफाजत और हमारे माल की हिफाजत हो जाती है। बहुत से लोगों का ये गुमान है कि आयतल कुर्सी पढ़ने के बाद तालियां बजाना, इसका हदीस से कोई सबूत नहीं है, बस आयतल कुर्सी पढ़ने का सबूत है। जितना हदीस से सबूत मिलता है वही हम काम करें, आगे कोई चीज़ कोई अमल ना किया करें, क्योंकि ये चीज़ बिदअत हो जाती है। आयतल कुर्सी पढ़ने के बारे में आया, बुखारी शरीफ की रिवायत है, तो आयतल कुर्सी पढ़ के एक मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ के ज़रूर सोया करें। इंशाअल्लाह हमारी जान और माल की अल्लाह ताला रात भर हिफाजत करेगा, क्योंकि अल्लाह ताला एक फरिश्ता मुतय्यन कर देता है जो हमारी और हमारे माल की हिफाजत करता है, हमारे घर बार की हिफाजत करता है। आइए अगली चीज़, गुस्सा शैतान की तरफ से आता है और गुस्सा में आदमी बहुत बड़ा नुकसान कर देता है। तो लिहाजा अपने गुस्से को कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि शैतान तो ये चाहता है कि इंसान को नुकसान में मुब्तला कर दे, मुसीबत में मुब्तला कर दे, और हम अगर गुस्से में कोई गलत कदम उठा लेते हैं, गुस्से को कंट्रोल नहीं करते हैं, तो फिर अपना ही नुकसान करते हैं। इसलिए हमें गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए। हजरत सुलेमान बिन सरद रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठा हुआ था, अचानक 2 लोगों में झगड़ा होने लगता है, दोनों एक दूसरे को बुरा भला कहने लगते हैं। उनमें से एक शख्स का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है, उसकी रगें फूल जाती हैं, गुस्से की वजह से उसका चेहरा बिल्कुल सुर्ख हो जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उस शख्स की ये हालत देखी तो फरमाया कि अगर ये मैं एक ऐसा कलिमा जानता हूँ, एक ऐसी दुआ जानता हूँ, अगर ये शख्स उस दुआ को पढ़ ले, उस कलिमे को कह दे, तो इसका गुस्सा बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। अगर ये औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ ले तो इसका गुस्सा बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। तो मालूम ये हुआ कि जब भी गुस्सा आए तो हमें औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लेना चाहिए। ऐसा करने से, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर पढ़ने से शैतान हमारे करीब से हट जाता है और फिर हम अल्लाह की हिफाजत में आ जाते हैं और हमारा गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा। तो जब भी गुस्सा आए तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना चाहिए। इसी तरह घर में दाखिल होते वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम अपने घर में दाखिल हो तो बिस्मिल्लाह, अल्लाह का जिक्र किया करो, यानी बिस्मिल्लाह पढ़ा करो। खाना खाते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ो। ऐसा करने से एक शैतान दूसरे शैतान से कहता है
کہ اب اس گھر میں نہ تمہارے لیے کھانا ہے, نہ تمہارے لیے رات میں رکنے کی جگہ ہے, ٹھہرنے کی جگہ ہے. لیکن جو شخص گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھتا ہے اور کھانا کھاتے وقت بھی بسم اللہ نہیں پڑھتا ہے, تو ایک شیطان دوسرے شیطان سے کہتا ہے اب تمہیں اسے یہاں کھانا بھی مل گیا اور یہاں تمہیں ٹھہرنے کی جگہ بھی مل گئی. تو معلوم یہ ہوا کہ شیطان سے اپنے گھر کو بچانے کے لیے ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے. اسی طرح گھر میں اگر جنات اور شیاطین کا بسیرا ہو تو ہمیں آیت الکرسی کا, ہمیں سورہ بقرہ کا اہتمام کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تجلوا بیوتکم مقابرہ, تم اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ. ان الشیطان من البیت الذی تقرأ فی سورۃ البقرہ, شیطان اس گھر سے نکل جاتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے. تو اگر شیطان ہمارے گھر میں قید ہو گئے ہیں, بسیرا کر لیا ہے, تو ہمیں چاہیے کہ گھر میں قرآن مجید کی تلاوت کریں اور خاص طور سے سورہ بقرہ کی تلاوت کریں, کیونکہ سورہ بقرہ پڑھنے سے شیطان گھر سے نکل جاتا ہے اور شیطان سے گھر خالی ہو جاتا ہے. تو اسی طرح سے ہمیں ذات سے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے جس کی وجہ سے ہم شیطان کے فتنے سے بچ سکتے ہیں, کیونکہ جب ہم اللہ کا ذکر کریں گے تو پھر شیطان ہمارے قریب نہیں آئے گا. شیطان کی چال تو یہ ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اذان ہوتی ہے تو شیطان اتنی تیز بھاگتا ہے کہ اس کی ہوا بھی خارج ہو جاتی ہے, لیکن جب اذان ہونے کے بعد پھر وہ واپس پلٹ آتا ہے. پھر اس کے بعد جب تکبیر ہوتی ہے نماز کے لیے تب پھر وہ بھاگ جاتا ہے. بھاگنے کے بعد تکبیر ختم ہونے کے بعد پھر جب جماعت ہونے لگتی ہے, نماز ہونے لگتی ہے, تو وہ آتا ہے اور نمازی کے دل میں وسوسہ پیدا کرتا ہے, اسے باتیں خیالات ذہن میں لاتا ہے کہ ایسی باتیں جو اسے نماز سے پہلے دھیان نہیں ہوتی ہیں وہ باتیں اسے نماز میں دھیان آ جاتی ہیں. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہیں نماز کی حالت میں وسوسہ آئے, خیالات آئیں, شیطان کی طرف سے وسوسہ آئے, تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو اور بائیں مرتبہ 3 مرتبہ تھتکار دو. اس سے تمہارے دل کے اندر جو وسوسے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. ہمیں چاہیے کہ آج جو باتیں بتائی گئی ہیں شیطان سے بچنے کے لیے, اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق فرما. اللہ رب العالمین ہم سب کو شیطان کے فتنے سے محفوظ رکھ. اللہ رب العالمین جب تک دنیا کے اندر زندہ رکھ, عزت کے ساتھ ایمان پر زندہ رکھ. اے اللہ جب ہمارے خاتمے کو وقت آئے تو ایمان کی حالت میں ہمارا خاتمہ ہو. آمین. السلام علیکم.